The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ورکر ہوتے ہیں نا، ہمارا پرچون کا کام ہے، تو وہ اپنا مشقت کی وجہ سے روزے ہی رکھتے ہیں، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس کا کیا گناہ ہے، ان کا چھوڑنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جو ٹھیلا لگاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے یا نہیں رکھتے، دونوں میں فرق ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کو روزہ رکھنا ہوگا۔ دیکھو قربانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، تو جہاد کی ترغیب کے لیے روزہ رکھنا ہوگا، محنت چھوڑنی ہوگی، جتنی برداشت کر سکتا ہے، آدھا دن کر سکتا ہے روزے میں، پھر آدھا دن کام کرے، آدھا دن چھٹی کرے۔ پورا دن کام کرنے سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو پورا دن چھٹی کرے اور کام کرے، شعبان میں کما لے، رجب میں کما لے، اور ویسے عام طور پر کوئی آدمی بھوکا نہیں مر جاتا، کچھ نہ کچھ کو مل ہی جاتا ہے، اس لیے وہ روزہ فرض ہے، یہ معاف نہیں ہوتا، یہ بہانہ نہیں ہے، مزدوری ہے، ڈیلی ویجز ہے، تو سب آگے پیچھے رقم رکھتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو رقمیں نکلتی ہیں ان کے گھروں سے، ڈھیروں ڈھیر نکلتی ہے، فرنیچر ہوتا ہے گھر میں، بہت آسائش کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ بہرحال روزہ معاف نہیں ہے، روزہ رکھنا ہوگا۔ اور جن کے پاس نوکری کرتے ہیں، سیٹھ کو چاہیے، بوس کو چاہیے کہ وہ اپنے مزدوروں کو رعایت کرے، اتنا کام لے کہ ان کے روزہ پورا ہو جائے، اس میں ان کو اجر و ثواب ملے گا، تعاون کرے۔ قرآن کریم کے حکم پر بھی عمل کی نیت ہو سکے گی، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ صلو علی الحبیب۔ رمضان مبارک کا روزہ جو سحری بند ہوتی ہے، یہ آزان کے ٹائم ہوتی ہے یا آزان سے پہلے 5-10 منٹ ہوتی ہے؟ اذان جو ہوتی ہے نا فجر کی، یہ ہر نماز کی اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، تو فجر کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہو۔ اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دیں گے تو اذان دوبارہ دینی ہوگی جب فجر کا وقت ہوگا، تو اس لیے روزہ جو ہے فجر کے وقت سے پہلے بند ہوتا ہے، یعنی ختم ہوتا ہے ٹائم اس کا، یہ صبح صادق اس کو بولتے ہیں، تو صبح صادق کے بعد اذان دی جائے، پہلے نہ دی جائے، تو اس لیے اذان کا تعلق نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات اذان جو ہے وہ فجر سے پہلے بھی شروع ہو جاتی ہے، صبح صادق سے پہلے، تو یہ کنفرم ہے کہ صبح صادق سے پہلے ہی اذان ہوئی ہے، تو اس دوران اگر کسی نے کھایا پیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس نے تو وقت کے اندر کھایا پیا، اذان دوبارہ دینی ہوگی۔ اور اگر اذان واقعی وقت پر ہو رہی ہے تب تو جو کھائے گا پیے گا اس کا روزہ تو چلا جائے گا، تو اس لیے اذان پر اعتماد نہ کرے، اذان کا نہ اذان پر کوئی اس کا تعلق ہے روزے کا، گھڑی گھنٹہ اپنا صحیح رکھے آدمی، تو ٹائم ٹیبل سب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر نماز کا جو ٹائم ہے، اوقات الصلاح، نماز کے اوقات، یہ مطلب 27 لاکھ سے کچھ زیادہ مقامات کے دنیا بھر کے ٹائم دیے ہوئے ہیں، روزہ سحری افطار کا بھی ٹائم ہے، یہ مطلب اس پر آپ باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹائم ٹیبل بٹتے تقسیم ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات صدیوں پرانے ہوتے ہیں، یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، بہت پرانے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایکوریٹ نہیں ہوتے۔ یہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پر پریئر ٹائم میں آپ دیکھ لیا کریں
کہ ایک ہماری باقاعدہ ایک مجلس بنی ہوئی ہے جس کو آپ لوگ ٹیم بولتے ہیں، پوری ٹیم ہے، اس پر لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. بڑے بڑے ہمارے پاس الحمدللہ آلات ہیں جن کے ذریعے سے وہ چاند تارے سب دیکھے جا سکتے ہیں، دور دور والے نزدیک نظر آئیں گے، واضح نظر آئیں گے. اس طرح ایک سسٹمیٹک ٹائمنگز ہیں ہمارے پاس. دنیا بھر میں ٹائم ٹیبل کے نقشے بھی جو مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں بہت پرانے لگے ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے اس میں. ان کو بھی چاہیے کہ مہربانی کر کے دعوت اسلامی کے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں، تو اس سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. پرانے نقشے ختم کریں. اگر اس میں غلطیاں ہیں، مجھے پتہ ہے کئی جگہ غلطیاں ہیں، اور نماز بے وقت ہو رہی ہے دنیا میں، خود اپنے یہاں پاکستان میں بھی. اس لیے وہ سب کو نقشے اپنے اس کے مطابق کرنے چاہیے. جید علماء اہل سنت سے آپ رہنمائی لینے والے، اپنی مسجد کے امام سے نہیں لینا. تو مسجد کا امام اس کا عالم، پھر جید عالم نے بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. بڑا عالم ہوگا وہ آپ کو مشورہ یہ دے گا کہ عاشقان رسول علماء مشورہ یہ دیں گے، ٹھیک ہے اس سے آپ رہنمائی لے لیں انشاءاللہ. بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں، تو بڑے بڑے پلازوں پر جو اوپر کی منزلوں پر ٹائمنگ میں اور نیچے جو زمین پر ہیں ان میں فرق پڑ جاتا ہے. نہیں اب دنیا آگے ترقی، ہوائی جہاز میں اور فرق پڑ جائے گا، بہت اونچا ہوتا ہے. ٹائم تو سب بدلتا ہے. مجھے تجربہ میں بغداد شریف جا رہا تھا جب، تو ہوائی جہاز میں سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، پھر اور آگے بڑھا سورج نظر آنے لگا. اوپر ہوتا نا ہوائی جہاز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ ارشاد فرما دیں کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ یہاں روایتوں میں آیا ہے، تو اس سے عام طور پر علماء یہی فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ، صغیرہ مانے چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ مانے بڑے گناہ. چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اب یہ کوئی کہے کہ چلو یار گناہ کر لو، چھوٹا ہے نا، پھر وہ کچھ فلاں ورد کر لیں گے تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہونے کی حدیث میں بشارت ہے، معاف ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر کیا تو فوراً وہ صرف کبیرہ نہیں، اشد کبیرہ نہیں، سخت ترین کبیرہ ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. بلکہ بعض صورتوں میں چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا جاننا کفر ہو جاتا ہے. اس کی اپنی تفصیلات ہیں. تو اس لیے اللہ کی نافرمانی کو کبھی بھی مطلب یعنی کہ ہلکا جاننا، یہ تو بالکل بے وقوفوں کی سرداری قبول کرنا، بلکہ اس سے بھی کوئی بڑا منصب ایسے شخص کو دینا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کو سمجھتا ہے کہ یار نو پرابلم، اور ندامت ہونی چاہیے اگر گناہ ہو بھی جائے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال آپ سے، یہ سحری نہیں کر سکے تو اب روزہ کس طرح جاری رکھیں؟ سحری تو پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے، کھجور کھا کر بھی ہو سکتی ہے. بہرحال سحری روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے. اگر سحری کے بغیر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ ہو جاتا ہے. جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہ گار ہیں؟ گناہ گار نہیں ہے. جو ٹی وی پر اذان ہوتی ہے اس سے سحری افطاری کی جا سکتی ہے؟ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اب جیسے کراچی میں بھی علاقے بدلتے ہیں تو کچھ ٹائم بدلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو پورے کراچی کے حساب سے وہ جو پورے کراچی کو جو کور کر لینا اس ٹائم پر یہ افطار سحری کے اعلانات کی ترکیب ہوتی ہے. لیکن ہر چینل یہ کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ احتیاط ہے. میں نے کہا نا وہ پرانے سینکڑوں صدیوں سال پرانے نظام چل رہے ہوتے ہیں. کیا سحری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کس چیز سے کرنا سنت مبارکہ ہے؟ کھجوروں کا تو حدیث پاک میں تذکرہ ہے. حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم السحور التمر، یعنی کھجور بہترین سحری ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، یعنی کھجور
मोमिन की क्या ही अच्छी शायरी है। सहरी का वक्त खत्म हो रहा हो तो टूथ ब्रश कर सकते हैं? टूथ ब्रश अगर टूथ पेस्ट भी साथ में है तो देख लें कि मुंह में जायका। खत्म हो रहा हो तो वही बोल रहा हूँ कि अगर टूथ पेस्ट भी लगाया तो मुंह में हो सकता है कि वो जायका उसका रह जाए और फिर थूक निकले उसका। तो ये क्योंकि इसकी टूथ पेस्ट की जो जायका टेस्ट जो है ना वो आसानी से जाता नहीं है, देर लगाता है, इसलिए एहतियात इसी में के रिस्क ना ले। कुछ देर पहले कर लें, इतनी देर पहले कर ले कि मुंह का जायका वो नॉर्मल हो जाए, टूथपेस्ट का जायका खत्म हो जाए। क्या सहरी के लिए सोना जरूरी है? सहरी के लिए सोना शर्त नहीं है। गुस्ल फर्ज हो तो क्या सहरी कर सकते हैं? क्या रोजा भी रख सकते हैं? हाथ धोकर कुल्ली करके सहरी कर सकते हैं। अगर किसी ने रोजा भी रखा इस हालत में तो रोजा फर्ज अदा हो जाता है उसका, लेकिन ये कि अगर नमाजें भी कदा हो जाती हैं तो फिर तो सख्त गुनाहगार है। सहरी का अफजल वक्त कौन सा है? सहरी में ताखिर करना, लेट करना, यह मुस्तहब है, मगर इतनी ताखिर भी ना की जाए कि सुबह सादिक का शुबा होने लगे, डाउट होने लगे। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ताखिर से मुराद कौन सा वक्त है। मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। तो रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाए? तो गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक रात कहलाती है। तो मसलन किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गुरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक हुई। इस तरह गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक जो 9 घंटे का वक्फा गुजरा वो रात कहलाया। अब रात के इन 9 घंटों के बराबर बराबर 6 हिस्से कर दीजिए, हर हिस्सा 1.5 घंटे का हुआ। अब रात के आखिरी 1.5 घंटे मसलन 2:30 बजे जबकि 4 बजे सुबह सादिक है, तो 2:30 और 4 के दौरान सहरी करना, ये ताखिर से सहरी करना हुआ। तो छठा हिस्सा जो है वो अफजल है। सहरी करने की क्या क्या नियतें की जा सकती हैं सहरी में? बेहतरीन नियत ये है कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, रोजे पर इससे कुव्वत हासिल करूंगा। वाकई रोजे पर कुव्वत हासिल होती है। अब रात भर खाए पिए नहीं फिर रोजा रखेगा तो जो हालत होगी। जब भी खाना खाएं कोई मतलब ऐसी चीज जिससे कुव्वत हासिल होती हो तो फिर उसमें ये नियत इतनी कम से कम नियत कर लेनी चाहिए कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूं। इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा, सहरी के बाद दुआ करूंगा, सहरी के बाद दुआ कबूल होती है। तो इस तरह मजीद नियतें इजाफा कर सकते हैं। रोजे पर कुव्वत हासिल करूंगा और सुन्नत अदा करूंगा, ये दोनों शायद ज्यादा मुश्किल नहीं है नियतें। सहरी वाली दुआ पढ़ना भूल गए तो क्या रोजा हो जाएगा? नहीं, रोजे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। नियत हो दिल में कि मेरा रोजा है। ये कहते रोजे की नियत वाली दुआ कब पढ़नी चाहिए? क्या रोजे की नियत की भी कोई दुआ होती है? रोजे की नियत की दुआएं किताबों में लिखी होती है, लेकिन हदीसों में पता नहीं शायद है नहीं नियत की दुआएं। नियत हो तो दिल के इरादे वो कहते हैं। दिल में नियत हो कि मेरा सुबह से रोजा है, कल मैं रोजा रखूंगा, सारी के वक्त ये नियत कर ले। रोजे की नियत क्या जबान से करना जरूरी है? नहीं, दिल में नियत होना काफी है। अब दिल में नियत है और जबान से कह लेना अच्छा है। या महले की आखिरी अजान तक सहरी जब अजान से सहरी का ताल्लुक ही नहीं है, आखिरी हो या पहली हो, अगर सुबह सादिक से पहले अजान हुई तो अजान दोहरानी पड़ेगी, और अगर सुबह सादिक से बाद हुई तो अजान सही हुई। अगर इस पर किसी ने खाया पिया तो उसका रोजा सही नहीं हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ये सवाल था कि हम लोग रोजा जो इफ्तार करते हैं मदनी चैनल से इफ्तार करें या इलाके की जो मस्जिद होती है वहां से इफ्तार करें? गुरूब आफ्ताब के जो औकात है ना, टाइमिंग्स, इनके मुताबिक करें। किसी पर भी भरोसा ना करें, अपनी घड़ी को भी सही रखें। बेस्ट वे यही है इसका। पता नहीं चैनल पर भी गलती हो सकती है, मौज़िन साहब भी गलती करते हैं, शोर भी मचते हैं कि आज मौलाना को रोजा लग गया था जल्दी अजान दे दी, तो लोग बेचारे को सही का मतलब हो। तो इसलिए वो अपना घड़ी घंटा, अपनी घड़ी सही हो और टाइम टेबल पर नजर हो।
टाइम टेबल ये जो आम जो तकसीम होते हैं इस पर एतमाद करने का मशवरा मैं नहीं दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की जो एप्लीकेशन है इसको इसमें औकात हैं, प्रेयर टाइम्स, इसमें रोज़े सहरी और इफ्तार का भी टाइम है, इसके मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ताहम अगर मुअज्जिन वाकई वक्त पर अजान दे रहा तो उसका भी फॉलो तो किया जा सकता है, लेकिन अजान से ताल्लुक नहीं, अजान का तो जवाब देना है। मुनासिब तो ये होता है कि पहले आदमी फौरन पानी का घूंट पी ले या खजूर खा ले, अब अजान हुई तो अजान का जवाब देकर वो लाखों करोड़ों नेकियां कमाए, बहुत सवाब है अजान का जवाब देने में। लेकिन हम अजान का जवाब जो कबाब समोसे को सौंप देते हैं, ठंडे मीठे शरबतों के हवाले कर देते हैं। हम लोग सखी लोग हैं, पैसे नहीं निकलते जेब से, नेकियां तो यूं लुटा रहे होते हैं। हम अजीब व गरीब लोग हैं। पहले के लोग बहुत सवाब के हरीस होते थे, हम माल के हरीस हैं। जो काश कब्र में सांप तो ला सकता है, सांप से बचा नहीं सकता। आग माल जो है दौलत जो कम जमा वो आग तो कब्र में ला सकता है, लेकिन ये माल आग बुझा नहीं सकता। नेकियां जो है ना ये काम आएंगी, और माल वो काम आएगा जो राय खुदा में खर्च किया, अपने बाल बच्चों पर शरीयत के दायरे में रहकर सिले रहमी की नीयत से खर्च किया। फिर ये इसके मुस्तस्नियात होते हैं कि जनरली माल जो है ये वबाल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है, क्या फ़र्ज़ रोज़े अपने मरहूमीन को इसाले सवाब की नीयत से रख सकते हैं या सिर्फ नफली रोज़े? जो आप बनायत फरमा दीजिए। ये सब ये फ़र्ज नमाज है, फ़र्ज रोज़ा है, फ़र्ज हज है, फ़राइज़ वाजिबात सबका इसाले सवाब किया जा सकता है। ये भी होता है कि अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 2 रकात नमाज नफल पढ़े, ये मुस्तहब है। सलातुल वालिदैन बेशक रोज पढ़े 2 रकात नफल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा हज़रत साहब से ये सवाल है कि ज़कात किस मौयत के बाद जाके फ़र्ज़ होती है, क्योंकि ख़ास तौर पे औरतों के लिए आप रोशनी डालें कि वो बचपन से लेके जब से उनकी शादी होती है वो उस वक्त से कुछ ना कुछ जमा करके साइड पर रख रही होती हैं, और जब उनके घर बेटी की औलाद होती है तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो अपने बच्ची के लिए जहेज़ के लिए जमा करते करते वो एक अच्छी खासी मिकदार पे अमाउंट जमा हो जाती है, ज़ेवर की मद में या कपड़ों की मद में या किसी भी चीज़ की मद में। तो उस पर क्या ज़कात फ़र्ज़ होती है उन पे या नहीं? अगर औरत का भी अगर निसाब पूरा हो जाएगा, जैसे 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी, या इसकी रकम हो जाए इतनी करेंसी, अब माल है तिजारत है, फिर वो एक अलग सूरत है। तो ये माल जमा करने की जो आप कह रहे हैं, तो इतनी माल अगर जमा हो जाए और वो हाजत असलिया जो ज़रूरतें हैं इससे हटकर है, वो कर्जे में भी डूबी भी नहीं है कि कर्जा देगी तो उतना इसके पास माल बचेगा नहीं, तो वो इतना माल अगर जमा किया उसने जिस पर ज़कात की निसाब हो गई पूरी जो मैंने अर्ज की, तो अब जिस तारीख को जितने बजे, जैसे कि समझो कि रजब की 3 तारीख को इसके बाद इतनी रकम जमा हो गई, 3 तारीख को दोपहर के 3 बजे इतनी रकम ये मालिका बनी। अब आइंदा साल इस रजब की 3 तारीख को 3 बजे इस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। तो वो जितने सालों की नहीं दी तो सारे सालों का हिसाब करके ज़कात तो देनी होगी। ये दलील नहीं चलेगी कि औरतें ये दलील देती हम कमाती नहीं है, कमाने से नहीं, किसी ने गिफ्ट कर दी तब भी वो निसाब में तो शामिल होगी। कमाए ना कमाए ये शर्त नहीं। सोने के ज़ेवरात जो औरतें पहनती हैं ये भी ज़कात में काउंट होंगे, इसकी भी ज़कात देनी पड़ेगी। जबकि वही जो मैंने निसाब की सूरत बताई ये शराइत पाए गए तो बेटी के लिए जैज के लिए रखा है, और ये दलाल नहीं चलेंगे बेटी का फर्ज अदा करना है वगैरह, या वह हम इस पर हज भी नहीं करते इस तरह नहीं। हज फर्ज हो गया तो अब करना ही पड़ेगा, चाहे वो बेटी बैठी है या बेटा बैठा है। इस मसले में एक सूरत मज़ीद भी पाई जाती है जिसमें अवाम गलत फहमी का शिकार होते हैं।
सोना 7.5 तोला से कम नहीं था, लेकिन जो दीगर चीज़ें हैं माल तिजारत या करेंसी या चांदी वो थे और वो भी निसाब से कम थे, तो फिर दो चीज़ों को मिलाकर चांदी के निसाब पर पूरा उतारेंगे। यानी अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुँचते हैं तो फिर भी ज़कात देनी होगी। तो 1 तोला सोना है, किसी के पास 10,000 रुपये हैं, मिसाल है 10,000 वरना तो 150 रुपये हैं, तो वो भी मिलाने पड़ेंगे। तो ये मिलाकर 1 तोला सोने के साथ 52.5 तोला चांदी के निसाब से ज़्यादा ही रकम बनेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, मैं इस वक्त हूँ ओमान में, मेरा फितरा पाकिस्तान में बनेगा या हम ओमान में निकलेगा, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकुल्लाह खैर। ओमान में तो ओमान के हिसाब से जो भी गेहूँ और खजूरें और किशमिश वगैरह का जो भी आप देना चाहे तो वहाँ की कीमत के मुताबिक अदा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सवाल ये है कि अगर बंदे का रोजा हो तो वो आंखों में सुरमा डाल सकता है या टूथ ब्रश कर सकते हैं कि नहीं? आंख में सुरमा डालने में हरज नहीं है। टूथ ब्रश में अगर पेस्ट भी लगाई है तो इससे तो बचना होगा कि बहुत खतरा है कि इसके जर्रात जो है ना ये हल्के नीचे उतर जाए। तो अब अगर हल्के नीचे उतर गया तो फिर तो रोजा टूट जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा टूटने के ताल्लुक से कुछ सवालात हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मिले हैं, तो इसका ताल्लुक रोज़ा टूटने वगैरह के ताल्लुक से है। मैं चंद एक सवालात आपसे कर लेता हूँ। क्या थूक या बलगम निगलने से रोज़ा टूट जाता है? मुंह के अंदर का थूक या बलगम निगल लिया रोजा नहीं टूटेगा। क्या तेल और खुशबू लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या गैर ज़रूरी बाल जिस्म से जुदा करने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या रोज़े की हालत में मिसवाक करने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या नाखून काटने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या खून टेस्ट करवाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या इंजेक्शन ड्रिप लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या रोज़े की हालत में नहाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या रोज़े की हालत में कुल्ली करने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या बच्चे को दूध पिलाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। या सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। बुखार चेक करने के लिए अगर थर्मामीटर मुंह के अंदर दाखिल किया तो क्या रोज़ा टूटेगा? नहीं टूटेगा। शुगर टेस्ट कराने से रोज़ा टूटेगा? नहीं टूटेगा। लिपस्टिक लगाने से क्या रोज़ा टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन लिपस्टिक में यह है कि अगर आदत है होंठों को जबान फेरती है और लिपस्टिक का असर हल्क में महसूस हो गया, इतनी उतर गई, तब रोजा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में अगर गुस्ल फर्ज हो गया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? नहीं टूटता। इंसुलिन लगाने से क्या रोज़ा टूटेगा? नहीं टूटेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी, क्या ज़कात सगे रिश्तेदारों को दे सकते हैं? सगा यानी रिश्तेदार। तो रिश्तेदार को ज़कात सूरत है इसकी, जैसे कि भाई बहन को दे सकता है ना। माँ बेटा, बाप बेटी एक दूसरे को नहीं दे सकते उसूल फरा में। यानी कि मतलब बाप दादा परदादा, माँ नानी पर नानी तर नानी, इस तरह, और बेटी नवासी पर नवासी, पोता पर पोता, ये जो उसूल फरा कहलाते हैं। उसूल माने जड़, फरा माने शाख। इनमें मतलब ये कि वो ज़कात नहीं दे सकते, भाई बहन को दे सकते, मियाँ बीवी को हम दे सकते अगर वो हकदार है तो। मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है वही देगी ज़कात। लेकिन औरत अगर ये कहती है कि मैं कहाँ से ज़कात दूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है कि ज़कात, अगर लाख रुपए की ज़कात बनती है, 1.5 लाख की या 50,000 की ज़कात बनती है, तो आप दो, मैं तो नहीं दे सकती, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो फिर ये औरत क्या करेगी? गोल्ड है ना इसके पास, गोल्ड है, गोल्ड दे दे। ज़कात में गोल्ड करेंसी देना जरूरी थोड़ी है। ये तो गोल्ड बेचने में जान निकल जाती है। गोल्ड कहाँ से बेचेगी? जान निकल जाएगी अगर। हाँ, ये जान निकल जाने, बुखल करेगी, कंजूसी करेगी। ये तो करना पड़ेगा ना, दिल तो बड़ा करना। अंगूठी बेचूंगी मैं, वो उसको लगा, वरना फिर बहुत बड़ा सांप बन जाएगा ये। हाँ, ये जो माल की ज़कात नहीं तो बहुत बड़ा सांप बनकर वो लिपट जाएगा और बादशाह पकड़ के, इसको माछ बोलते, बादशाह पकड़ के क्या क्या, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ,
गले में लिपट जाएगा। ये मरने के बाद के अजाब से बचने के लिए अभी सामान किया जा सकता है। आप इन्हें तरकीब दे सकते हैं कि कोशिश यही करें कि कोई और ज़कात क्यों दे, यानी कि अगर ये अपने शोहर को या अपने भाई को या अपने वालिद को जो ज़कात देना चाहता है, इन्हें क्या ये ऑफ़र ना करे कि आप अपनी जेब से ज़कात ना दें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चूँकि ये सोना है तो क्या ही अच्छा हो कि मेरा ही कुछ सोना ऐसा अल्लाह की राह बेच कर मेरे सोने से अल्लाह की राह में आप ज़कात दें, ताकि मुझे भी ये तो इसी माल की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत और आए खुदा में ख़र्च करने की चीज़ें नहीं लगता कि आपको इस औरत में इजाफा होगा? बिल्कुल देना चाहिए। मतलब ये तो आग बन जाएंगे, आग के पत्थर बन जाएंगे और दागा जाएगा इस तपा के आग में, और कोई इस पत्थर ऊपर नहीं रखा जाएगा दूसरे के, यानी बदन इतना बड़ा हो जाएगा हर जगह ये माल खजाना जो है ना ये दागा जाएगा। और भी कई अजाब हैं कि इधर रखेंगे तो पीठ, सीने पे रखेंगे तो पीठ तोड़कर उसका माल निकलेगा, पेशानी में रखेंगे पीछे से निकलेगा, और इस तरह के अजाबात इतने सख्त हैं। ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद ना देने वाले के ये माल नहीं काम आएगा। अगर माल किसी को काम आता तो कारून ज़मीन में काहे को गरक होता, माल समेत गरक हुआ है ना, और क़यामत तक वो धंसता रहेगा, माल उसके सर पे है। और इसके पास माल इतना था कारून के 40 आदमी सिर्फ उसके खजाने की चाबियां उठाते थे, इतना खजाना था उसके पास, कुछ काम नहीं है। माल मरी बीमार हो जाता आदमी तो दौलत से दवा खरीद सकता है, शिफा थोड़ी दौलत से खरीद सकता है। मालदार भी आखिर दुनिया से चला ही जाता है ना, बीमारियां भुगत भुगत कर। कितने आपको मालदारों में मरीज ज्यादा मिलेंगे, खुसूसन दिल के मरीज ज्यादा मिलेंगे मालदारों में, क्योंकि ये मूवमेंट कम करते हैं, एसी में ज्यादातर रहते हैं, तो एसी तो खतरनाक है ना, पसीना निकलने नहीं देता, और पसीना ये अंदर की खराबियों को, फासिद मादों को अंदर की निकालता है। ये पसीना ना निकलना ये खतरनाक है। मगर हम यही देख रहे हैं कि हर वक्त, अब इस वक्त तो आप लोग भी एसी में, मेरे कमरे में एसी नहीं है, या मेरे इत्तिकाफ में मैं जा सकता हूँ, मैं इतना एसी का नहीं हूँ आदी। अब यहाँ भी बाज़ वक़्त कोफ्त होती है, लेकिन अब आदी होता जाता हूँ, तो तवज्जो जाती है तो फिर सर्दी लगती है, अभी लग रही है तवज्जो गई तो ये कि पसीना नहीं निकलता, बिल्कुल खुश्क हो गया, ये नुकसानदेह। एसी में जो भी रहते हैं मेहरबानी करें, अपने हाल पर रहम करें। अच्छा, डॉक्टर दुआ करते हैं कि हमारी रोजी में बरकत, तो ठीक है, आपकी मर्जी है। यूँ डॉक्टरों को माल देते, ये बचाए और गरीबों को देना है माल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि ईशा की नमाज गुजर जाए तो तरावियाँ शुरू हो गई, तो ईशा की नमाज अदा करें या तरावियाँ पढ़ लें, या तरावियाँ पढ़ के ईशा की नमाज अदा करें? पहले ईशा के फर्ज पढ़ लें, 2 सुन्नतें पढ़ लें, अब तरावी पढ़ लें, फिर बाद में वित्र पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर साल तलबा की शख्सियत साजी में निखार पैदा करने के लिए दारुल मदीना के शोबा दीनियात की जानिब से रमज़ान तरबिया होमवर्क जारी किया जाता है। इस साल रमज़ान तरबिया होमवर्क में तिलावत कुरान पाक, नमाज़ों की पाबंदी, नेकियों का कैलेंडर, अहदीस मुबारका का चार्ट और अखलाकी औसाफ पर मबनी सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। रमज़ान तरबिया होमवर्क दारुल मदीना की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इस तरबिया होमवर्क के ज़रिए ऐसे वालिदैन भी अपने बच्चों को इसकी सरगर्मियाँ करवा सकते हैं जिनके बच्चे दारुल मदीना में नहीं पढ़ते। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, बराह करम ये इरशाद फरमाइए कि दारुल मदीना की तरह दूसरे स्कूल्स को ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए जिनकी बदौलत इन स्कूल्स के तलबा रमज़ानुल मुबारक बेहतर अंदाज में गुजार सकें। अव्वल तो स्कूल्स में छुट्टी नहीं होती रमज़ान शरीफ में, और बेहतर गुजारना ये बड़ा दुश्वार है, रोज़े नहीं रख सकेंगे। हालांकि 7 साल का बच्चा हो जाए तो माँ बाप के लिए हुक्म है कि रोज़े का इसको हुक्म करे, वाजिब है माँ बाप पर। अब ये रोज़े का कहते हैं तो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? स्कूल जाकर वो रोज़ा रखे, इसका चांस कितना? ये आजमाइशें तो हैं। दारुल मदीना में अलबत्ता रमज़ान शरीफ की छुट्टी। तो अब ये कि
रोज़े का तो उसमें तो मैं ज़रा क्या तरमीम करूं, जो बच्चे के रोज़े की 7 साल फिर 10 साल में मज़ीद ताक़त बढ़ जाती है। यहाँ तो बालिग बच्चे, बालिग लड़के भी स्कूलों में जाते हैं तो वो भी पता नहीं रोज़ों का क्या करते होंगे, वो तो फ़र्ज हो जाएगा रोज़ा। ये सारा निज़ाम तब्दील होना चाहिए। ज़रा मैं बहुत बैठ बैठे बोल ही सकता हूँ, मेरी चलती कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में छुट्टी होती है, दावत इस्लामी का अपना इदारा है, तो यहाँ ये जो चाहे अपने साए वही कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक का आफियत नसीब फरमाए, बच्चों को रोज़े रखवाएं और जो जबकि ताकत हो इनमें तरावी पढ़ाएं, नमाजें पढ़ाएं 5 टाइम, और हर ये तो पूरा साल 5 टाइम नमाजें तो पढ़ानी है। 7 साल का हो जाए तो नमाज की भी इसको मतलब हुक्म करना है, माँ बाप पे ये भी वाजिब हो गया। 7 साल इसको देखते रहेंगे नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, सिखाते भी रहें इसको। 10 साल का हो जाए तो और ताकत बढ़ जाएगी नमाज पढ़ाने की बच्चों को। तो ये करने वाले काम है, लेकिन पढ़ ले तू पढ़ ले, अभी बस एक ही काम हो, स्कूल पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तो दुरूशी भी तो पढ़, कुरान भी तो पढ़, तिलावत भी तो कर। ये तो बहुत कम माँ बाप ही कहते होंगे दीन पढ़ने का, तो अब माँ बाप खुद नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। अकीदे सबको पता होने चाहिए, नमाज के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, ये सब मतलब यानी कि सीखने वाले ज़रूरी है ना। जिन पर रोज़ा फ़र्ज है उन पर रोज़े के ज़रूरी मसाइल भी सीखना फ़र्ज है कि वो जानता हो। लेकिन बहुत मुश्किल, नमाज 100 साल के हो जाते हैं एक बात है, तब भी नमाज के मसाइल से बाज़ औक़ात बिल्कुल आगाह नहीं होते, मालूमात नहीं होते, सीखा ही नहीं होता कभी। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो बच्चों पर बहरहाल है कि कोशिश जारी रखें कि ये नमाज रोज़ों का पाबंद हो और तिलावत करे, नेकियां करे, गुनाहों से बचे, गुनाह भरे चैनल्स ना देखे। तो गुनाह भरे चैनल्स ऐसे भी होते हैं कि जो इस्लाम का लेबल लगाते हैं पैसे खींचने के लिए, जो करते हैं मैं उनको कहता हूँ, हर एक को तो नहीं कह रहा मैं, तो वो लेबल इस्लाम का होता है और फिर इस्लाम का नाम लेकर वो कुछ करते हैं जिसमें उलमा का खून जलता है। अवाम को नहीं समझ आती, अवाम इसी को इस्लाम समझ रहे होते हैं, जबकि वो बाज़ औक़ात बिल्कुल नक्शा बिगाड़ा जा रहा होता है इस्लाम का। इसलिए मैं तो अर्ज़ करूँगा कि तो मदनी चैनल पर एड तो है नहीं, वल्लाह खुदा की कसम मेरा 1 रुपया भी मदनी चैनल में तनख्वाह नहीं है, मुझे 1 रुपये की आमदनी नहीं है। कोई ये समझेगा ये अपने मदनी चैनल का क्यों कर रहा है, तो मेरी कोई आमदनी नहीं है इसमें। मैं अल्लाह पाक की कसम में उम्मत की बेहतरी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। गुनाहों से बचना चाहते हैं, नेकियां करना चाहते हैं, दीन सीखना चाहते हैं, तो मदनी चैनल देखें। बाकी आपकी मर्जी है, एतमाद करें ना करें। अगर मदनी चैनल में कोई इस्लाम के खिलाफ बात होती है तो हम बैठे, हमको बताएं आप, हम इंशाल्लाह सांस बात में लेंगे, पहले इसको ख़त्म करेंगे। कैसे आ गई है, आ भी नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ से घेरा तंग है इसमें माशाअल्लाह। हमारे ठोक बजा कर ये तरकीबें हो रहे हैं, उलमा की सरपरस्ती में काम हो रहा है, इसलिए वो इसका चांस कितना इस्लाम के खिलाफ कोई हो जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह इससे पहले ईमान पर मौत हमें दे दे कि हमको इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई करे, चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि भरपूर कोशिश होती है कि गलतियां भी ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तरावीह की जमात से अगर 2-4 रकातें रह जाएं तो उसे बाद में खुद पढ़ सकते हैं। नमाज तरावीह में कुछ लोग बैठकर बातें करते रहते या मोबाइल पर लगे रहते और रुकू के वक्त शामिल हो जाते हैं। सफ टूटने से क्या बकिया की नमाज पर फर्क आएगा? सफ तो वाकई नहीं तोड़नी चाहिए कि सफ तोड़ना गुनाह है। तो तरावी की अगर 2-4 रकातें रह गई तो वो तरावी इमाम के साथ अगर पढ़ लिया आपने, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, इमाम से हटकर भी अलग से भी पढ़ सकते हैं, सब से निकल कर फिर इमाम के साथ कंटिन्यू आप आखिर तक शामिल रह सकते हैं। दोनों सूरतें जायज़ है। वित्र से पहले पढ़ लेना अच्छा है। बिलफर्ज अगर वित्र पढ़ ली है तब इसके बाद भी तरावी माफ़ नहीं होती, वो तो पढ़नी है। इसका टाइम सुबह सादिक तक है, रात ख़त्म होने तक। सहरी का वक्त ख़त्म होता ना, तरावी का वक्त भी खत्म हो जाता है। राय के जो बैठे रहते हैं, अब मोबाइल फोन पर लगे रहते होंगे, पहले भी बैठते थे। बाहर शरीयत ने भी बैठने वालों की मजम्मत की है कि बैठते हैं और रुकू के वक्त भाग भाग के जैसे रुकू में जाते हैं,
یہ غلط طریقہ ہے. اور یہ منافقین اس طرح کرتے تھے کہ بیٹھے رہتے تھے اور نماز میں اس طرح شامل ہوتے تھے. یہ قرآن کریم کی آیت بھی بہار شریف میں ایسے موقع پر لکھی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ. یہ اندر سستی کی علامت ہے. ورنہ یہ کہ اگر یہ شروع سے شامل ہو جائیں گے تو ثواب بھی تو زیادہ ملے گا. یوں بھی دیکھا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے. یعنی بلا وجہ بیٹھا رہنا, سستی میں بیٹھا رہنا اور موبائل پہ لگا رہنا, تو ایسا نہ کیا کرے. رمضان سال میں ایک ہی بار تو آتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے زندگی آخری رمضان ہو. کسی کو کوئی کنفرمیشن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ اتنے سالوں تک رمضان ملتا رہے گا. کسی کو خوش فہمی ضرور ہے, آئندہ سال یوں کریں گے, پائندہ سال یوں کریں گے, لیکن موت آ پہنچی کہ بھائی جان واپس کیجیے. یہ اپنی خوش فہمیاں جو ہیں یہ اپنی حد تک ہی ہے. کیا ہونا ہے میرے رب کو پتہ ہے. اس لیے یہ رمضان ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس میں خوب فائدہ اٹھائیں اس کا, اور آخرت کا نفع جمع کریں, عبادت کریں, روزے رکھیں, تلاوت کریں, نمازیں پڑھیں, درود شریف پڑھیں, ادھر ادھر فالتو وقت نہ گزرے, ثواب کا کام کریں. اور ایسی عادت رمضان شریف میں ثواب کے کام کی پڑے کہ پھر سارا سال ثواب کے کام کرنے کا سلسلہ رہے, یہ کٹ نہ ہو. تراویح نہیں ہوگی انڈرسٹوڈ ہے, لیکن جو مطلب ثواب کے کام ہوں گے وہ کرتے رہنے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد. تراویح کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت. تراویح کی کل کتنی رکعتیں, 8, 10 یا 20؟ 20. تراویح پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک, اگر سحری کا وقت ختم ہونے تک. اگر کسی نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں, صبح صادق ہو گئی تو تراویح کا ٹائم ختم ہو گیا, اب اس کی قضا بھی نہیں ہے. تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ, یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم کر لیا تو اب یہ کہ سب پر وہ ساقط ہو گیا, معاف ہو گیا. کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقدہ چھوڑی. تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں. 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے. اس بیٹھنے میں اسے اختیار ہے کہ چپکا بیٹھا رہے, یا کلمہ پڑھے, یا تلاوت کرے, یا درود شریف پڑھے, یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے. جماعت سے مکروہ ہے. یا یہ تسبیح پڑھے, وہ جو تسبیح پڑھی جاتی سبحان ذی الملک والملکوت, یہ لکھا ہوا ہے. کیا یہ تراویح کی دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے 4 رکعتوں کے بعد؟ مشہور ہے نا تراویح کی دعا. تراویح کی دعا, ہاں, تو یہ اچھی ہے, اللہ کی حمد ہے, اس میں تعریف ہے. کچھ بھی نہ پڑھے بالفرض بیٹھا رہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے. کیا عورتوں پر بھی تراویح لازم ہے؟ جی ہاں, ان کو بھی عورتوں پر بھی سنت موقدہ تراویح وہ اپنے گھر میں اب الگ الگ پڑھیں گی. کیا مسافر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے, امامت کے اگر اہل ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسہ صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, تو کیا کہنا ہے, گرمی میں لوگ بعد جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بولتے ہیں گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ گیا, یہ ہو گیا, کہ وہ رہنمائی فرما دیں. ہاں, تو گرمی تو رمضانوں میں گرمی بھی آتی ہے, سردی بھی آتی ہے, بارش, ہر موسم میں رمضان شریف تشریف لاتا ہے. پورے سال ہماری تربیت ہے اس میں کہ ہر موسم میں روزہ تو رکھنا فرض ہے. کہیں کہیں تو 20 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, وہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. یو کے میں کتنے گھنٹے ہوتا ہے؟ تقریباً 21 آورس, 21 گھنٹے, 21 آورس کا روزہ. 3 گھنٹے کی رات ہوتی ہے یو کے, لنڈن. اب آپ لوگ مرتے ہیں وہاں جانے کے لیے, روزے کیسے رکھو گے؟ رکھتے وہاں بھی رکھتے رکھنے والے. 21 گھنٹے کا روزہ. افطار, مغرب, تراویح, سحری,
ये बड़ी ये आजमाइश सब उनको 2.5 से 3 घंटे में सब कर रहे अब वो इफ्तार में डट के खाना, फिर अब सहरी में भी डट के खाना, ये जो इनके विचारों के जिस्मानी कैफियत होती है ना, भी अरे इतना हो तो फिर उस सहरी में लाइट ही ले आदमी, पेट भरा हुआ इसमें ठोसे जाना, तो ये भी तो हिर्स होती ना कि सारा दिन नहीं खाना है। पानी का क्या करेंगे, पानी स्टॉक अगर किया भी तो निकल जाएगा, 21 घंटे नहीं रहेगा। बहरहाल ये कि आजमाइश है तो उनको जितना मशक्कत होगी सवाब भी ज्यादा मिलेगा। तो इनसे हम दर्श लें कि वहाँ वाकई रोजे रखते हैं, आपको पता है ना, देखे आप तादाद रोजे रखते और रोजे रखते हैं माशाल्लाह। ऐसा पहले होता था कि शायद ना रखते हो, लेकिन मालूमात दी तो पता चला है कि एक तादाद है जो रोजे रखते रोजा रखते हैं। यूके, लंदन, मुसलमान कहाँ नहीं है, फिर दावत इस्लामी कहाँ नहीं है, जो नहीं रखते थे उनको कितनों को दावत इस्लामी ने रखने वाला बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब ये कि हमारे यहाँ तो फिर भी 12 घंटे 13-14 घंटे का रोजा होता है, तो पाकिस्तान में तो जो आसानी है ना अपने यहाँ तो इन मानो कर, इसलिए वो हिम्मत नहीं आ रहे। गर्मी सर्दी, गर्मी में तो नफल रोजे रखने के भी मतलब यानी कि बुजुर्गों के अकवाल है। हज़रत फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोग कब्रों से भूखे प्यासे उठेंगे, तो जिस शख्स ने गर्मी के दिनों में नफल रोजे रखे होंगे, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के खाने और जन्नती मशरूबात यानी पीने की चीज़ें भेजेगा। उसका रोज़ा आएगा और हौज से लोगों को हटाते हुए जाम भर भर कर उसे खूब सैराब करेगा यानी पिलाएगा। बहरहाल ये कि गर्मी हो, कितनी ही गर्मी हो, तो रोज़ा ना छोड़े, रोज़ा रखें। अगर रोजे की हालत में गाली निकल गई तो रोजे पर क्या फर्क पड़ता है? रोजे की नूरानियत चली गई, अगर गाली देगा तो रोजे में मकरूह होता है रोजा। तो गाली देना गुनाह, इसकी तौबा भी करे, और रोजे के अलावा भी गाली देना दार गुनाह का काम है। सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली देना ये फिस्क। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अरशद साहब हैं, ये सवाल कर रहे हैं, दांतों से खून आने की बीमारी हो तो रोजे का क्या हुक्म है? रोजा तो रखना होगा, खून थूक ले, मतलब दांतों से खून निकल कर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था, मगर उसका मजा हल्क में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोजा जाता रहा। और अगर कम था और मजा भी महसूस ना हुआ तो नहीं, अब रोजा नहीं जाएगा। तो अगर थूक लाल हो गया, ज्यादा की अलामत यह कि थूक लाल हो गया, तो ऐसी सूरत में खून थूक से ज्यादा या बराबर था, ये लिखा, खून थूक से ज्यादा या बराबर था। ये अगर निगल लिया तब तो टेस्ट महसूस ना भी हो तो रोजा टूट जाएगा। और अगर थूक कम था, थूक में खून कम था और वो उतरा, तो जब तक जायका महसूस ना हो रोजा नहीं टूटेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मिठा मिठा अमीर अहल सुन्नत ही ॿुधायो त जेके फ़क़ीर रोड ते ऐं सगिरनि ते पिनंदा आहिनि, रमज़ान में घणा थी वेंदा आहिनि, इन्हनि खे सदको ख़ैरात ज़कात ॾियणु सवाबु मिलंदो, जाइज़ आहे या न? जेका हींअर रमज़ान में बाज़ार में इलाही भिखारी नज़र ईंदा आहिनि रमज़ान शरीफ़ में, ईअं मस्जिदनि में भी ऐलान दवा जा लिस्ट ॾेखारना ऐं एक्सरा ॾेखारना, ई मतिलबु तक़रीबन नकली प्रोफेशनल अहिड़ो लेक्चर ॾींदा आहिनि कि माण्हू मतिलबु जेको दुखी हूंदो त हू तो ॿोली ना सघे न, तो रोए, जो प्रैक्टिस ना हुए, ही स्पीच कंदा आहिनि, ही पहचान थी वञे थी जेका नकली हूंदा आहिनि। तो जेको नकली हुजे उनके भीख ना ॾियणी खपे। ख़बर आहे कि ही प्रोफेशनल आहे, नकली आहे, पेशावर आहे, तो उनके भीख ॾियणो जेको गुनाह आहे कि ही गुनाह करी रहियो आहे,
हमारा दीन इनकी मदद करी रहा है। ने मस्जिद में भी भिखारी अगर सच्चो भिखारी है उनके भी मस्जिद में भीख ॾियण जी मुमानत है, मना है। उलमा फरमाइंदा है, बाहर शरीफ में लिखा है कि अगर मस्जिद में 1 पैसा मस्जिद के साइल को दिया तो बाहर निकलकर 70 पैसे कफ़ारे में खैरात करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि सैयद फैमिली को फितरत और ज़कात दे सकते हैं, और ये भी इरशाद फरमा दिए कि सैयद फैमिली फितरत ज़कात किसी गैर सैयद को दे सकते हैं। सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती, दे दी तो नहीं अदा होगी, फितरा भी नहीं दे सकते। और सैयद पर अगर ज़कात फ़र्ज है तो वो भी सैयद को नहीं दे सकता, उसको गैर सैयद ही को देना होगा जो हकदार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यात्रा साहब से मेरा सवाल ये है कि अंदाजे से कोई ज़कात निकाल सकता है या नहीं, बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। पूरा हिसाब करना होगा अंदाजे से, तो नफ्स है ना, माल देने में थोड़ा, माल देता है तो आह करके देता है, लेता है तो वाह करके लेता है, तो नफ्स भूल खिला देगा, इसलिए वो एक्यूरेट ज़कात निकलनी फ़र्ज है। हाँ, अगर किसी ने गिने बगैर सारा ही माल दे दिया तो उसकी ज़कात हो जाएगी, ज़कात की नहीं, सब गिनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बुजुर्गों का कौल तो मिलता है कि शरीयत ने 2.5% ज़कात मुकर्रर की है, हमारी 100% ज़कात है, हम रखते ही नहीं है। और तसव्वुफ की एक तारीफ़ लिखी गई है कि तसव्वुफ खाली हाथ दिल की खुशी का नाम है, पल्ले कोड़ी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, दिल मुतमईन है, खुश है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है। अब ये कि पूरा माल तो गिनना पॉसिबल नहीं होता, इतना लोगों के पास माल होता है, तो अगर ऐसा है कि अगलब गुमान मतलब ज़न्ने गालिब यकीन के दर्जे में हो तो यूँ ज़कात हो जाएगी। ऐसा हो कि ज़्यादा जाए कम ना जाए, इतना दिल मुतमईन हो, नीयत साफ मंजिल आसान। बचाने के लिए वो चक्करबाजी करेगा तो अल्लाह पाक को पर तो सब रोशन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि जिस शख्स ने इशा की नमाज बाजमात अदा ना की हो लेकिन तरावी बाजमात अदा की हो, तो क्या वो वितर भी बाजमात अदा कर सकता है? बेहतर यह कि वितर अलग से पढ़े, अगर बाजमात पढ़ भी लिए तो गुनाह नहीं होगा, हो जाएगी वितर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रोज़े के ताल्लुक से कुछ अवामी गलत फहमियाँ भी हैं, कुछ उनको तशवीश भी होती है, तो चाह रहा था कि चंद सवालात जो आए हैं वो आपसे पूछ लिए जाएं। क्या सिगरेट का धुआं मुंह में जाने से रोज़ा टूट जाएगा? अगर सिगरेट का धुआं फ़ज़ा में उड़ रहा है और सांस में चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर इरादतन किसी ने सिगरेट का धुआं या अगरबत्ती का धुआं या कोई सा धुआं खींचा, रोज़ा भी याद है, तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े के दौरान टाइम पास करने के लिए फिल्म या ड्रामा देखने से रोज़ा टूट जाएगा? गुनाहगार होगा, रोज़े की नूरानियत चली जाएगी, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़े में ऐसा करना मकरूह है। रोज़ा याद होते हुए वुज़ू करते हुए पानी हलक से उतर गया, गलती से उतरा, क्या रोज़ा टूट जाएगा? रोज़ा याद था तो रोज़ा टूटेगा, वरना नहीं। काजल लगाने से क्या रोज़ा टूटता है? एहतियात करना अच्छा है काजल से, जो काजल सुरमा एक है नहीं है, इसमें उलमा का कुछ इख्तिलाफ है, तो बचना चाहिए। सुरमा लगाने से क्या रोज़ा टूटेगा? नहीं टूटेगा, चाहे उसकी हल्क में महसूस हो तब भी नहीं टूटेगा, हदीस शरीफ में इसकी इजाज़त मौजूद है। स्टीम यानी भाप लेने से या ये नेबुलाइज करने से रोज़ा टूटता है? टूट जाएगा। रोज़े के दौरान अगर इस्लामी बहनों के मखसूस अय्याम शुरू हो जाएं तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जी जी, रोज़ा टूट जाएगा। क्या आंखों में लेंस लगाने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? अगर लेंस पर लिक्विड लगा हुआ है तो रोज़ा टूटेगा, अगर लेंस खुश्क यानी ड्राई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। खाना बनाते हुए चखने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? अगर इस तरह चखा के हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ज़रूरत है कि तो फिर चक ज़बान से टच किया, जैसे तो टेस्ट ज़बान से मालूम हो जाएगा, फिर उसको अच्छी तरह थूक दे के
कोई भी हिस्सा इसका हल्क से नीचे ना उतरे तो नहीं टूटेगा। बिला जरूरत इस तरह किया तो मकरूह है। डकार के आने से रोज़ा टूटता है? नहीं टूटता। रोज़े की हालत में हिजामा करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। अगर हिजामा करवाने से कमजोरी होती हो तो मकरूह है। आँख में ड्रॉप डालने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? टूट जाएगा। गाली देने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? रोज़ा मकरूह होगा क्योंकि रोज़े की नूरानियत चली जाएगी। मुसाफिर पर क्या रोज़ा रखना ज़रूरी है? मुसाफिर जो शरई मुसाफिर है तो उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, और अगर सफ़र आसान है तो बेहतर यही है कि वो रोज़ा रख ले। और अब सफ़र आसान होते हैं, हवाई जहाज़ में महसूस नहीं होता, घर में एसी हो ना हो, हवाई जहाज़ में तो एसी होता है, चलना फिरना पड़ता है। एक शख्स की सहरी के वक्त तबीयत सही नहीं रहती मगर दिन में तबीयत उसकी दुरुस्त हो जाती है, तो इस हालत में वो क्या करे, रोज़ा रख ले? अब इसकी फिर वही तफसील है कि रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी, तब तो रोज़ा न रखने की इजाज़त है कि बाद में क़ज़ा कर ले। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो इससे रोज़ा न रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी, रोज़ा रखना होगा। फिर ये भी बता रहे कि दिन में तबीयत सही भी हो जाती है, तो फिर इसकी अलामत है कि रोज़ा तो इसको रखना चाहिए, रोज़ा फ़र्ज रहेगा। रोज़े के दौरान ज़्यादा सोने से क्या कुछ रोज़े पर फ़र्क पड़ता है? रोज़े पर इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। सारा दिन भी अगर सोया रहे बंदा नमाजों के अलावा और दीगर ज़रूरियात के अलावा, तो रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जागे ताकि रोज़े का पता चले ना। पता ही ना चले तो फिर बहुत सारी जो मसलहतें होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि हामला औरत रोजा रख सकती है? अगर रख सकती है तो उसको कितना सवाब मिलेगा? 2 जान का सवाब मिलेगा सुना है हमने, रहनुमाई फरमा दें। हामिला रोजा तो रखना ही होगा, इसको फर्ज है इस पर, जबकि कोई वही सूरत ना हो कि इसकी जान का खतरा है, इसके बच्चे की जान का खतरा है, कोई सी सूरत है तो वो एक अलग इजाज़त की सूरतें होंगी, वरना ये कि रोज़ा तो रखना है, उसको भी फ़र्ज है। अब अगर सवाब तो यूँ होता है कि जो अमल जितना दुश्वार होता है ना, इतना उसको सवाब ज़्यादा मिलता है। अफ़ज़लुल अअमाली अहबज़ुहा, हदीस पाक में कि अफजल तरीन अमल वो जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो। अब ये कि एक आम नॉर्मल औरत है उसको रोज़ा रखने में कम तकलीफ़ होती है, और जो इस तरह हामिला है तो उसको तकलीफ़ कुछ ज़्यादा अगर होती है रोज़े में, तो और फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर रही है, तो यूँ इसका सवाब बढ़ जाएगा। 2 जान का कह रही है? 2 जान अच्छा, यानी कि अंदर का बच्चा भी रोज़ा रख रहा है। बाप रे बाप, वो तो बच्चा कैसे रोज़ा रखे, पता कैसे चलेगा कि बच्चा रोज़ा रख रहा है या नहीं रख रहा है? कि बच्चे को तो कुदरती निज़ाम जो है अंदर ग़िज़ा का, वो उसकी माँ के पेट में मिल रही है ग़िज़ा, कि बगैर ग़िज़ा के जिएगा कैसे? तो उसको तो वो तो रोज़ा रखेगा नहीं, तो फिर सवाब मिलेगा कैसे? तो अपनी जान का ही सवाब मिलेगा। अच्छा, ये इसी तरह एक सवाल आया है कि कह रहे हैं कि वो एक औरत अगर हमला है और वो रोज़ा नहीं रख सकती तो इसका कोई कफ़ारा है? ऐसी हामिला के जो मतलब जान का खतरा है या बच्चे की जान का खतरा है, तो अगर ये रोज़ा नहीं रख पा रही बाद में क़ज़ा करेगी। वो कहते हैं मैं जिस इमाम के पीछे तरावी पढ़ता हूँ तो क्या मैं उन्हें ज़कात दे सकता हूँ जबकि वो मुस्तहिक हों? बिल्कुल दे सकते हैं। तरावी में हाफिज़ साहब के पीछे अगर कोई सुनने वाला ना हो तो और वो क़िराअत में भूल भी करते हों तो क्या वो गुनहगार होंगे? इरादतन भूल करेंगे तो गुनहगार होंगे। सामे रखना तो वाजिब नहीं है सुनने वाला। हमारे यहाँ ये उर्फ है कि सामे रखा जाता है, और ये अच्छा तरीका है कि सामे जो है वो इसकी इस्लाह करता रहेगा, भूले तो। रोज़ा किस नीयत से रखना चाहिए, फ़र्ज़ की नीयत से या अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए? फ़र्ज़ की नीयत करे। नफल भी तो अल्लाह की मोहब्बत में रखा जाता है अल्लाह के लिए। किसी ने कोई चीज़ छुपा ली, अब वो पूछ रहा है छुपाने वाले से या तुम्हारे पास है, तो वो मजाक में मना कर देता नहीं है मेरे पास नहीं है, तो क्या ये झूठ होगा? मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है। तरावी में अत्तहियात नहीं पढ़ी, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो क्या करें? अत्तहियात पूरी करके सलाम फेरेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سحری کے بعد عموماً عادت ہوتی ہے کہ لوگ پیسٹ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تو اور بعض اوقات وہ ماؤتھ واش کر لیتے ہیں. تو روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں تو سحری کے بعد بھی مطلب ہے نا بہت ٹھنڈک منہ میں اور اس کا ذائقے کی کیفیت ایسا لگتا ہے ذائقہ آ رہا ہے، حالانکہ اچھی طرح کلی کر لیتے ہیں. تو یہ جو ذائقہ آ رہا ہے یا جو اس کا پیسٹ کا جو ذائقہ منہ میں رہتا ہے، کیا اس سے کیا روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بار بار تھوک آتا ہے، تو اگر وہ اس کو نگل لیا تو مسئلہ ہوگا. کیا اگر اس کو نگل لیا تو کوئی روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ اگر رات میں کیا ہے سحری کے بعد، تو سحری تو جلدی بھی کرتے ہیں نا، تو رات میں کیا پھر تو نو پرابلم، اگر وہ کوئی پیسٹ نیچے بھی اتر جاتی ہے تو. اور اگر صبح صادق ہو گئی اور اب پیسٹ کے اثرات ہیں منہ میں ٹھنڈا کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر بچپن کا کوئی 12 سال کے نیچے والا اگر کوئی واقعہ ہمیں یاد ہو جس میں ہم نے اپنا روزہ کسی ضد کی وجہ سے یا تو پھر روزہ جو ہے لگنے کی وجہ سے ہم نے روزہ توڑ دیا ہو، اب اگر وہ ہم جب کہ بالغ ہو چکے ہیں، اب اگر وہ یاد آ جائے تو کیا وہ روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا؟ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ نابالغ نے روزہ توڑ بھی دیا تو اس کو قضا کرنا ضرورت نہیں اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی کھانا کھا لیں، آپ کا چڑیا روزہ ہے، کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مندی پور ارشاد فرمائیے. یہ تو نئی اصطلاح ہے میرے لیے. نہیں تو روزہ رکھوایا ہے بچے کو تو کھانا تو نہیں اس کو کھلا سکتے. اگر کھلا دیا تو پھر روزہ اس کا ہوا نہیں، پھر اس کو یہ نہیں کہے کہ روزہ ہے. اب وہ دعوت ہے، پہلا روزہ ہے، تقریب ہے، اور مطلب دھوم مچی ہوئی ہے اور تحفے تحائف وصول کر رہی ہیں، اور بچے کو چپکے سے کھلا دیا اور پھر کہتے رہے کہ اس کا روزہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جھوٹ کا گناہ اور عذاب بھگتنے کے لیے بندہ تیار رہے. بہرحال لے کر روزہ رکھوائیں اتنی عمر میں اس کو پہلا کہ وہ برداشت کر سکے اور اس کی صحت پوزیشن دیکھ لے. ورنہ آپ چپکے سے کھلا دیں اور سب سمجھیں روزہ، اور سب کو آپ بولیں روزہ ہے اس کا، اس کو بھی بول دیا، بولنا نہیں کہ میں نے پانی پیا تھا. یہ تو جھوٹ بھی اور اس کی غلط تربیت بھی ہے بچے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں چوٹ لگ جائے اور اس میں سے زیادہ مقدار میں خون نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں. خون زیادہ نکلے یا کم نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara.